I have to make an announcement, please. No, nothing is going on record. Honorable members, I have to inform the House. Pramod Tiwari, nothing is going on record. Honorable members, I have to make an announcement, an important announcement. Kindly listen to me. Give precedence to the chair. Please, take your seat. I am grateful, sir. Honorable members, under Rule 267 today, an issue was raised. And Deputy Leader of the Congress, Shri Pramod Tiwari, had met me in the chamber also. The issue is with respect to deportation from the US. The Honorable, the Honorable External Affairs Minister will be making a statement during course of the day. And looking to the situation, I will allow members to briefly intervene. Is that fine, Honorable Minister? And the External Affairs, Parliamentary Affairs Minister had so agreed. Considering the importance of the matter, the Foreign Minister has already agreed and made a request to you that he will make a statement at 2 p.m. And all the honorable members also desire that. But about the intervention and the queries, it has to be as per the convention, and I leave it to the chair. No. 1 second. John, I have chosen to make a statement myself. And I am glad that the Honorable External Affairs Minister himself sought my audience and so indicated that he'll be making a statement on the issue during course of the day. And now, as per the Parliamentary Affairs Minister at 2 p.m., I deem it expedient to allow intervention very briefly by party leaders. Is that fine, sir? I thought you were asking me to observe silence. आपने ऐसे करना? नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए उंगली उठाया। तो सर ठीक है, धन्यवाद आपने। तो 2 बजे कर लें सर, बाकी 2 बजे कर लेंगे जब स्टेटमेंट देंगे। नहीं, आपने जो इस अमेरिका का जो इंसिडेंट हुआ, वही 2 बजे। नहीं, उसके बारे में आपने डायरेक्शन दिया, तब सरकार ने उसको मान लिया। नहीं सर, सरकार सोमोटो तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद। तो मेरा प्रभाव इतना रहा कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने सोमोटो मेरे को आकर ये कह दिया। यू वांट टू से समथिंग? Sir, I just wanted to say that what you had were gracious enough to mention, which was that I came to you, sir, this morning, yes, saying that this is an issue on which the House should be informed. Yes. So I'm so glad that this point was brought out by you. And it is in fitness of things that Parliament should be taken into confidence on all issues of public importance and national importance. So we can express some kind of thanks to the Honorable External Affairs Minister. Question number 31. इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर एक बार हो गई तो सबकी हालात, मासी हालात मालूम है और कौन से स्टेज में कौन सी कम्युनिटी है, उसका फायदा अपने को मिलता है और जिसको सहूलत हम देना है उसको हम सहूलत दे सकते हैं। इसीलिए ये जाति जनगणना कर रहे, ये किसी और को छेड़ना, किसी को अपमान करना, किसी के इसलिए नहीं। बैकवर्ड क्लासेस जिनको आज बहुत बैकवर्ड में फिर बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, तो इनकी सब हालात मालूम होगी। तो इसीलिए
हमको एक योजना करने में, स्कीम बनाने में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। और एक साहब, अब तो ठीक है, मैं तो आपको सारी चीजें बताया, अब 3 ही बताऊंगा आपको, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। ये 3 बात करके मैं खत्म करूंगा। उसीलिए आप सर, गांधी जी, दुर्दैव की बात है कि इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में सर मैं तो नहीं देखा, सर आप बहुत पढ़ते हैं, शायद आपको मिला होगा, गांधी जी के कोई कार्यक्रम है साहब? हाँ है, गोडसे की सरकार मानने वाले हाँ मुझे, क्योंकि आप बारीकी से पढ़ते हैं इसीलिए पूछा कि मेरे को आजकल बड़ा चश्मा होना पड़ता, इसीलिए मेरे को नहीं मिला हो। तो अगर आपको मिला गांधी जी के बारे में और मनरेगा के बारे में, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? हाँ, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? महात्मा गांधी, नहीं, आप जवाब मेरे से मांग रहे हैं कि इनसे मांग रहे हैं? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसकी फोटो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट में लगाया। अब आज आप सावरकर की फोटो लगा रहे हैं, वो बात और है, और गोडसे की पूजा करते हैं, वो बात और है। तो सर, जब सर उनको इतना महत्व दिया जाता था बाबा साहब का, तो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो हर वक्त उनका डाक निकलता था। तो कई चंपारण का, कई सत्याग्रह, क्विट इंडिया, ये सारी जो सारे समय पे उनके डाक चिट्ठी निकलती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी जी गायब है आपके बजट में, उनका नाम नहीं। मनरेगा तो उसको महात्मा गांधी के नाम से ही हम रखे थे, और इसीलिए आपने कम किया कि 86,000 करोड़ पहले था, आज भी वैसा ही है, जैसा कि झील के पानी, क्या बोलते हैं वो, झील के जैसे ठहरा हुआ पानी के जैसे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग और खुद बार बार बात करते हैं, आपने ना भारत छोड़ो आंदोलन में उनका मदद किया और अंग्रेज को मदद किया था उस वक्त। और याद रखना जरूरी है, हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए अरे अरे सुनो भाई, सर हेडगेवार ने संघ के कई कार्यकर्ताओं को आजादी की लड़ाई में शामिल न होने का सुझाव देते हुए कहा था, तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? गोलवलकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा था, इस समय भी संघ का निरंतर कार्य चलना चाहिए, आंदोलन के बारे में मत सोचिए। ये गोलवलकर गुरुजी बोले, वो हेगड़ेवार बोले। गलत नहीं, मैं देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ। सावरकर के बारे में और उनके बारे में क्या लिखा है सर, ये नया कली निकला है, आप पढ़े होंगे, और वो कौन लिखा है वो भी बोलता हूँ सर। और उसके बाद में गांधी जी तो 2338 दिन जेल में थे, नेहरू जी 3259 दिन जेल में थे। आपके लोग कितने थे, कहाँ थे, कितने करें? तो आप जेल नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़े, जाने वालों को भी रोक दिए,
ऐसी ये सरकार, ऐसी ये पार्टी है, ये लानत है। और ऊपर से हम देशभक्त हैं, हम देश को बचाने वाले। अरे देश को तो क्या बचाते, तुम देश के लिए फाइट भी नहीं करे हैं। और अब क्या हो गया, अब तो देश का बचाने का तो छोड़ो, देश को बेचने वाले बन गए हैं। सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूं। 2014 में बीजेपी के नेता लोग ये समझते हैं कि आजादी